Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss electronic configuration. In today's topic, we will discuss about shells, subshells, electronic configuration, and off-bow principle. Before going to electronic configuration, let us discuss about atoms and atomic structure. Electronic configuration is about arrangement of electrons, but before that we will know about how atom exists and where its subatomic particles are present. So first of all, what is an atom? Okay students, I am giving you a few seconds to think about what is an atom. Oh yes, the smallest unit of an element is called atom. आपके पास कोई भी एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, आप उसको ब्रेक डाउन करें, जितने सारे पीसेस उसके बन सकते हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो हमेशा हर पीस के अंदर क्या होगा, आयरन ही होगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. It consists of central nucleus surrounded by one or more electrons. As you can see in the diagram that nucleus is present in the center of the nucleus and these circles are called shells. Okay, and the sky blue color dot are showing electrons. Electrons revolve around the nucleus. Next. What is nucleus? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम. आपका जो एटम है उसके सेंटर में क्या एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसके अंदर दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एंड दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. कंटेन्स मोस्ट ऑफ एन एटम्स मास. इट मींस कि आपका जो एटम है उसके अंदर सबसे जो हैवी पार्ट होता है उसका, वो क्या कहलाता है, nucleus. This is what you have discussed in Rutherford's atomic model. Now, what is proton? अभी आपने स्टडी किया ना, न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. Now question arises, what is proton? Proton is a positively charged particle. It is found within the atomic nucleus. As you can see that there is a particle which is carrying positive charge and that very particle is called proton. Okay, where it is found? It is found in the atomic nucleus. So the next is, what is neutron? Where it is present? Neutron is uncharged particle. As you can see in the diagram, it is carrying no charge. So it is uncharged particle. It is neutral in its nature. It is found within an atomic nucleus. आपने अभी पढ़ा था ना कि atomic nucleus के अंदर कौन से दो particles होते हैं, protons and neutrons. Now you have studied about both of the particles, that proton carries positive charge but neutrons carries no charge. And when we talk about their masses, proton and neutron have same masses. Okay, that is why nucleus carry most of the mass of an atom. Okay, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? As we are going to discuss electronic configuration, so we must have an idea of electron. क्या चीज होती है इलेक्ट्रॉन? Electrons are negatively charged particles. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? As you can see in the diagram, this is a particle holding negative charge. So electron carries negative charge. It is located in shells that surrounds an atom's nucleus. कि electron nucleus के अंदर present नहीं होता. Where it is present? It is present around the nucleus in
शेल्स। अब शेल्स क्या चीज होती है बेटा? शेल एक किस्म का रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसकी एक फिक्स एनर्जी होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शेल्स। दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर लेसन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के आसपास सर्कल्स होते हैं, उनको शेल्स कहते हैं, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ओके, सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाई वी हैव स्टडीड अबाउट एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, what it stands for. To understand electronic configuration, we should know about shells and subshells. कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि shells क्या होते हैं, subshells क्या होते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? shells की। The electron in an atom revolves around the nucleus in circular path called shells or orbits. Understood? कि आपके पास एक एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के आसपास सर्कल्स बने हुए हैं, और वो सर्कल किसको शो कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के पाथ को शो कर रहे हैं। उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स। एंड देन दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। अब शेल्स को हम शो करते हैं एन से। एन कुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। When we talk about n is equal to 1, so it is called K shell. N is equal to 2, it is called L shell. N is equal to 3, it is called M shell. And N is equal to 4, it is called. So as you can see in the diagram, there is a white dot in the center of the nucleus. That is called nucleus. Okay? And around it, there are a lot of circles. Each circle is showing orbit or shell. So there are some numbers written on it. These numbers shows that these shell contains such number of electrons. पहला shell कितने electron hold कर सकता है? 2. सेकेंड एंड थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 4 और 5th में 18 इलेक्ट्रॉन है, और फिर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन है. How did we calculate it about number of electrons in a shell? As you can see on the left side of the screen that there is a formula given. 2n square. 2n square बच्चे ऐसा फार्मूला है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. For example, when we talk about shell number 1, so n would be 1. By putting its value, you will find out that 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है. 2 ones are 1. So when first shell will contain 2 electrons. शेल्स की बात हो गई. क्या पढ़ा शेल्स के बारे में आपने? कि एटम के आसपास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं? जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा शेल्स के बारे में और आपने क्या पढ़ा? उनकी नेमिंग कैसे होती है? सबसे पहले वाले शेल को क्या कहते हैं? के. सेकेंड शेल को एल, थर्ड शेल को एल, थर्ड शेल को एम, एंड फोर्थ शेल को एन कहते हैं, एंड सो ऑन. Okay, now we talk about subshells. A sub energy level is called a subshell. एक आपने मेन एनर्जी लेवल की बात की, उसको आपने क्या कहा? शेल. अब सब एनर्जी लेवल जो होगा, जो उसको उस मेन शेल को डिवाइड करने से जो छोटे शेल बनेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? सब शेल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर के शेल, वन सब शेल 1s. आपके पास जितने नंबर ऑफ जो n नंबर होगा ना किसी की भी शेल का, उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे. अब k का n नंबर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसके अंदर कितने सब शेल हैं? सिर्फ एक ही s सब शेल है. l का जो है n नंबर कितना होता है? n इज इक्वल टू 2 होता है ना, तभी वो l शेल कहलाता है. तो इसके अंदर कितने, क्योंकि इसका n नंबर 2 है, सो इट वुड कंटेन s and p. m shell would contain s, p and d. And M shell would contain S, P, D, and F. Okay.
I'm holding this screen for a while. You may note that which shell contains which subshell. K contain S subshell, L contains S and P, M contains S, P and D, and N contains S, P, D and F. Okay, so these are some sub energy levels present in the main energy level. Okay, मेन एनर्जी लेवल कौन से हैं? के, एल, एम और एन, और सब एनर्जी लेवल्स ये सब शेल्स कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ. तो अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स की. कैसे हम बात करते हैं कि कौन से शेल में कितने सब शेल्स हैं और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं. So this is I am revealing this one by one. When we talk about K subshell, K shell के अंदर कितने सबशेल हैं? एक ही सबशेल है, अभी आपने पढ़ा था. इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? S शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं. P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 आते हैं. D के अंदर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 आते हैं और F के अंदर 14 आते हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट L सबशेल, L के अंदर कौन से दो सबशेल होते हैं? S और P होते हैं. S के अंदर 2 आते हैं एंड P के अंदर 6 आते हैं. तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन वी टॉक अबाउट M सबशेल, तो M के अंदर बेटा M शेल के अंदर 3 सबशेल्स होते हैं, 3S, 3P एंड 3D. S के अंदर फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन. अब एक और चीज बेटा याद रखनी है कि S, P, D एंड F ये जहां पे भी प्रेजेंट होंगे, ये जिस भी शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है. चाहे S K में प्रेजेंट है, चाहे L में प्रेजेंट है, चाहे M में प्रेजेंट है, चाहे N में. S शेल जिधर भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 2. P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे और F के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे. Now you can see that S contains 2 electrons, P contains 6 electrons, D contains 10 electrons. So the sum of these electrons would be 18. ठीक है, जब आप ओवरऑल बात करेंगे कि M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो you would clearly say that it contains 18 electrons. Now we talk about N subshell. N के सबशेल्स कितने हैं? S, P, D एंड F. इसके अंदर क्योंकि इसका N नंबर ही 4 है तो इसके अंदर 4 सबशेल्स हैं. सो these are 2 plus 6 plus 10 plus 14. इनको ऐड अप करने से क्या नंबर आते हैं आपके पास? 32. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ while so you may note the accommodation of electrons in shells and subshells. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा. अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट 20. आपके पास जो आपके कोर्स का, आपके सिलेबस का हिस्सा है कि आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में सारी उसकी प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना है. उनके एटॉमिक नंबर्स भी याद करने हैं, एटॉमिक मैसेज भी, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको पता होनी चाहिए. बट बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, आप लोग अकोमोडेशन देख लें कि इनके अंदर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जस्टिफाई हो रहे हैं कि 1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो सेकंड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. द पीरियोडिक टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो, वॉच इट विद कंसंट्रेशन. तो आप लोगों को बहुत सारे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स present होते हैं. Element on the periodic table is represented with its atomic number and its atomic weight. The element's atomic number, represented here by the smaller value, tells us how many protons are present in the nucleus of an atom for any given element. It also tells us the number of electrons for the neutral atom, because in an atom there is no charge, and so the number of protons and electrons are equal.
The atomic mass, represented here by the larger decimal value, can tell us how many protons and neutrons are present in the nucleus of an atom for any given element. In a previous lesson, we learned about electron shells and electron configurations. In this lesson, we shall learn about electron configurations of the first 20 elements and how this relates directly to the group and period numbers in the periodic table. Electrons do not simply fly around a nucleus randomly. Instead, they occupy specific levels called electron shells. Each electron shell can only hold a set number of electrons. The first electron shell can hold up to 2 electrons. The second electron shell can hold up to 8 electrons. The third shell can initially hold 8 electrons, though later on it can hold up to 10 more, giving us the transition elements. So in the case of a hydrogen atom, its 1 electron occupies the first electron shell. For a helium atom, both of its 2 electrons also occupy the first electron shell. For a lithium atom, 2 of its 3 electrons occupy the first electron shell, while the third electron occupies the second shell. For a beryllium atom, 2 electrons occupy the first electron shell, and the remaining 2 occupy the second shell. In written form, these configurations can be expressed as follows. The values in these expressions represent the number of electrons in each of their corresponding electron shells. Now for an exercise. See if you can draw the electron configuration diagrams for the following elements. Grab a pencil and a piece of paper, pause the video, and resume when you're ready. Now let's compare to what you've drawn. Now notice that the atoms for all elements in the second period have 2 electron shells. You will also notice that the number of valence electrons. Okay students, आप इधर गौर से देख लें कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट हो रहे हैं. आपने अभी पढ़ा था ना कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. चाहे आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है, 15 है, जितने भी हैं, आपने फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं. ठीक है. सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं. थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रखने हैं. तो इस तरीके से आपने फिलिंग करनी होती है. पहले आप फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप नेक्स्ट शेल में भेज देंगे. अगर नेक्स्ट के भी 18 पूरे हो गए हैं और स्टिल आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं तो आप वो उससे अगले शेल में भेज देंगे. ठीक है. अब फर्दर इसको देखें, इन सारे एटम्स को देख लें, इनकी अकोमोडेशंस देख लें ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. आप ये लास्ट वाला देखें, नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10. इट मींस दैट इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन. 10 में से फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले शेल में हमने अकोमोडेट कर लिए. बाकी कितने रिमेनिंग है? 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है. वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ पे अकोमोडेट किए हैं हमने? सेकंड शेल में. अब ये हमारा सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया. सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं ना, वो भी कंप्लीट हो गया. अब इससे आगे हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे ना, वो अब सेकंड शेल में नहीं आएंगे, वो अब नेक्स्ट शेल में आएंगे, जैसे कि आप फर्दर इस वीडियो में देखेंगे. That is, the electrons occupying the outermost shell correspond to the group number. For instance, let us have a look at nitrogen. Nitrogen is in group 5 and has 5 valence electrons. Oxygen is in group 6 and has 6 valence electrons. So moving from left to right in the periodic table, the number of electrons in valence shells increases by 1 electron. Are you ready for the next exercise? Let's try drawing the electron configuration diagrams for all the elements in the third period. Grab that pencil and paper again, pause the video and resume when you're ready. You will see the same trend for the group number and the number of valence electrons as you did in the elements for the second period. Notice that the electrons for all elements in the third period occupy 3 electron shells. ओके बेटा, यहाँ पे आपने क्या चीज नोटिस करनी है? आप देखिए सबके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2 8. 2 8 सारों में कांस्टेंट है. मींस आपके फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उनके अलावा बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने नेक्स्ट शेल्स में अकोमोडेट करने हैं. ओके. एज यू कैन सी इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एटम्स दैट देयर, they contains 2 8 1, 2 and 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5 and so on. For potassium and calcium, their respective valence electrons occupy the 4th electron shell. In summary, we've seen that the number of electron shells corresponds to an element's period number, and the number of valence electrons corresponds to an element's group number. After this, things get more complicated.
Remember how at the beginning of the video we saw that actually there can be 18 electrons in the third shell. But this Okay students, I hope you have learned here कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ शेल्स की हमने बात की है कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, थर्ड में 18 एंड सो ऑन। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन शेल से हम सब शेल्स में कैसे डिवाइस करते हैं, और फिर जो है उस सेकंड शेल के अंदर इनकी फिलिंग किस रूल के थ्रू करते हैं। हमारे पास एक रूल है ऑफ पावर प्रिंसिपल। ऑफ पावर प्रिंसिपल हमें सिंपली क्या कहता है कि आपने बोहर के और रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था ना कि हर शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी तरीके से सबसे जो करीब वाला शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ओके, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑफबाउ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की बात करते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिक्स करने की, रखने की बात करते हैं, तो एक्चुअली फिलिंग किस तरीके से होती है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमेशा कम एनर्जी वाले शेल में जाएगा। जब कम एनर्जी वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो फिर वो उससे ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा, और फिर जब सेकंड भी फिल हो जाएगा फिर वो थर्ड शेल में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहली दफा जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जंप करके सबसे हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाए। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ Bohr principle? It states that electrons are added one at a time to the lowest energy orbitals available until the electrons of the atom have been accounted for. कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो सबसे पहले किधर जाएंगे? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। इसके बाद जो है जब वो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट में पूरे हो जाएंगे फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे एंड फिर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इसके साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपने सिंपली क्या लिखा कि जो फर्स्ट शेल है, आपको पता है ना फर्स्ट शेल के अंदर क्या, उसके कितने सब शेल होते हैं? 1s सब शेल होता है। सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं? s एंड p होते हैं, 2s और 2p। ये जो 1 और 2 और 3 और 4 है ना, ये शो कर रहे हैं शेल को, और s p d f ये किसको शो कर रहा है? सब शेल्स को शो कर रहा है। ओके, तो 3spd 4spdf। इसके बाद ये नेक्स्ट डायग्राम आप देख लेना, इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। सबसे पहले ऑर्डर आपको दिखा रहे हैं कि सब शेल्स की फिलिंग किस तरीके से होती है। ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वो जो एरोज वाली डायग्राम है वो किस तरीके से बनानी होती है। वेट एक मिनट दोबारा से। सबसे पहले आप लिखे 1s 2s 3s 4s 5s and 6s। इसके बाद आपने क्या लिखना है? अब 1 के अंदर तो एक ही सब शेल होता है s, उसके अंदर p नहीं होता। 2 के अंदर 2p प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपने 2p 3p 4p 5p एंड 6p की बात कर ली है। फिर आप देखेंगे कि 2 के अंदर सिर्फ 2 सब शेल्स आते हैं, 2s एंड 2p। इसके अंदर d सब शेल प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके आगे d नहीं लिखा। लेकिन जो थर्ड शेल है उसके अंदर 3p 3d भी प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अंदर फिर आपने उसी तरीके से तरतीब से लिख लिया 3d 4d 5d 6d। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? f की। आपके पास 3 जो शेल है उसके अंदर सिर्फ 3 ही सब शेल होते हैं, उसके अंदर f प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए मैंने 3d के आगे 3f नहीं लिखा। जबकि फोर्थ शेल और फिफ्थ शेल है उनके अंदर f प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे मैंने f मेंशन किया है। अब बेटा वो जो एरोज आपने लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं, एक तिरछी लाइन खींचनी है। अब ये किसको काटती हुई गुजरी है? 1s को। इसके बाद अब सेकंड लगाते हैं, वो कहां से गुजरेगी? 2s से गुजरेगी। फिर थर्ड लगाएंगे, वो कहां से गुजरी है? 2p एंड 3s। आपने कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से लिखनी है। सबसे पहले किस पे एरो लगा? 1s। आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन में लिखना होगा 1s। फिर किस पे एरो गुजरा? 2s। फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखना होगा 2s। फिर एरो कहां से गुजरा? p से गुजरा, फिर s की तरफ आया तो पहले आप 2p लिखेंगे फिर 3s लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा? 3p 4s। इसके बाद नेक्स्ट जो एरो आपका लग रहा है 4s के बाद आप क्या लिखेंगे? 3d 4p
एंड 5s मींस के एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपने फर्स्ट शेल को पहले लिखना है, सेकंड को बाद में, और एरो जो एंड हो रहा है उसको एंड पे। अब 4d को पहले क्रॉस किया तो पहले हम 4d लिखेंगे, फिर 5p, फिर 6s एंड 4f, 5d, 6p, 5f, 6d एंड सो ऑन। ये देखें नीचे कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई है। आपने ये जो एरो लगाए हैं ना, इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। सबसे पहले एरो ने किसको क्रॉस किया था? s को क्रॉस किया था, तो आपने सबसे पहले 1s लिखा। फिर एरो ने किसको क्रॉस किया था? 2s को लिखा था, फिर हमने 2s लिख दिया। फिर थर्ड पे आपने आपके जो एरो था उसने किसको क्रॉस किया? 2p एंड 3s, फिर आपने 2p एंड 3s लिख लिया। इसके बाद बच्चे एरो ने किसको क्रॉस किया था? 3p एंड 4s, फिर आप देख सकते हैं कि आपने 3p एंड 4s लिखा। इसके बाद जो नेक्स्ट देखें, एरो ने 3d को क्रॉस किया था, फिर 3d पहले लिखा है, फिर 4p, फिर 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से बच्चे ये एरो के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक नमूना है कि इस तरीके से इसकी शेप होती है। यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं की हुई है। और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है ना, कि जब आपको कोई बताएगा कि एक आपके पास एटम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताएं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप किधर फिल करेंगे? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। इनमें से सबसे लोएस्ट किसकी है? s की एनर्जी है। तो सबसे पहले आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर फिल कर देने? s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 थे, वो तो यहाँ पे खत्म हो गए, तो आगे वाली सारी कॉन्फ़िगरेशन पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, so electronic configuration is a distribution of electrons among the different subshells of an atom is called electronic configuration। ये आप डिटेल से बात कर चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है आपके ग्रुप प्रोडक्ट टेबल में? दैट इज हाइड्रोजन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2। सो आप लोग अपनी नोटबुक इन पेंसिल ले लें। आपने ये साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की नोट कर लेनी है जो आपके कोर्स का हिस्सा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स देख लेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ों की फिलिंग हुई हुई है। एलिमेंट्स, अब थर्ड एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का होता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। मींस इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपने सबसे पहले लोअर में करनी होती है। लोएस्ट शेल कौन सा था? 1s। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो स्टिल वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो उधर फिल हो गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? 2s1 में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो s जो 2s है उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन की सलाहियत थी ना, कैपेबिलिटी थी, तो 2s2 हो गया। बोरोन देखें 1s2 2s2। अब बेटा बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले s में आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड s में आ गए, तो अब स्टिल इट इज it contains a single electron that would not be accommodated in the s subshell। क्यों नहीं s में हमने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लिखा? क्योंकि जो आपके पास s सबशेल है बेटा, एस सब शेल जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो पी है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये जो 2p1 है ना, अब फर्दर देखते हैं तो ये 2p1 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन जब हम करेंगे तो ये 2p2 हो गया। अच्छा, ये जो पावर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। ये तो क्लियर है ना बातें? 1 2 एंड 2 जो है ये किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ शेल को, एस एस एंड पी सब शेल को शो कर रहा है, और इनके ऊपर ये जो पावर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है। अब देखें, मैंने 2p2 पे खत्म बात नहीं कर दी। अब मेरे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया वो भी मैंने p के अंदर ही अकोमोडेट किया। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि p कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब तक p के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते इलेक्ट्रॉन अगले सब शेल में नहीं जाएगा। ऑक्सीजन के देखें, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सबशेल में चले गए, 2 दूसरे में, टोटल 4 हो गए यहाँ पे। बाकी कितने रिमेनिंग है? 4 रिमेनिंग है, वो आपने पी में अकोमोडेट कर लिए। फ्लोरीन देखें बच्चे, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 तो पहले 2 सबशेल्स में आगे, बाकी रिमेनिंग कितने थे? 5। वो हमने किस में अकोमोडेट कर लिए? पी में अकोमोडेट कर लिए।
नेक्स्ट बेटा नियॉन की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले सब शेल्स में हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आने थे वो हमने की तरह अकोमोडेट करनी है P6 में। अब बेटा बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया है वो हमने B में अकोमोडेट नहीं करना, वो हमने उससे अगले सब शेल में डालना है एंड दैट वुड बी 3s1। अब नेक्स्ट में मैग्नीशियम में 3s2 हो गया। जब हम 13 की बात करेंगे, अब 3s2 हो गया ना जब, तो 3s कितने अकोमोडेट कर सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता था। तो अब जो नेक्स्ट आया था 13वां इलेक्ट्रॉन जो आया वो हमने उसके अंदर अकोमोडेट नहीं करना, दैट 13th इलेक्ट्रॉन वुड बी अकोमोडेटेड इन P1। अब आपने इसी P को फिल करना है, फिर नेक्स्ट में P2 हो गया, फिर आगे P3, P4, P5 एंड P6। यहाँ तक आपके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। आई एम होल्डिंग दिस स्लाइड फॉर अ व्हाइल so you all may note it down. Okay, students, these configurations are part of your syllabus. You have to memorize them. So, review देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जल्दी जल्दी से। यहाँ पे आपका लेसन जो है वो रिवाइज हो जाएगा। What is electronic configuration? It is the distribution of electrons of an atom or a molecule or the physical structures. नील बोर ने सबसे पहले इसकी बात की थी। It was proposed that the periodic properties किसके related होती हैं? Electrons के। So how do we get the electronic configuration? Just remember, ये ऑर्डर है जो भी हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम एरोस लगा के ऑर्डर ले लेते हैं और उसके अंदर हमने फिर फिलिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एग्जाम्पल देख लें आप कि जैसे एल्यूमिनियम है, इसके अंदर टोटल नंबर 13 है, तो आपने वो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट करने हैं? ये देखें बच्चे, इस तरीके से सबसे पहले आपने वो पूरा सीक्वेंस लिख लेना है, फिर उस सीक्वेंस के अंदर क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशंस। एक मिनट, इसको दोबारा मैं चला लूं। ये देखें बच्चे, ठीक है, इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। थैंक यू सो मच। आपने इसको रिवाइज भी कर लिया है। अब होमवर्क देख लें। आपका होमवर्क है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल, शेल एंड सब शेल। So next question is, how many shells are there in N shell? Give notation for subshells of N shell in order of increasing energy. Which orbital of the following pair is lower in energy? I'm holding this slide for a while so you may note it down. Okay, students, thank you so much. I hope आप लोगों ने आज का लेसन एंजॉय किया होगा। आपने as you all know that practice makes a man perfect. आप लोगों ने जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट बन जाएंगे और उतने ही जल्दी आप फिंगर टिप्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। आप लोगों ने ये होमवर्क भी सारा डिटेल से करना है और फिर जो एक ड्यू डेट होगी
उस पर आपने ये सबमिट कराना है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।